I welcome you all to the next problem of advanced accounting, chapter number 4. As we have completed half of the problem in the previous session, now we will be dealing with the full problem of it. Clear to it? Okay. Admission fees, that is 1000, it is credited to your profit and loss account credit side. Then we have is purchases, that is 31,72,000, that will move under ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 31,72,000 इनर कॉलम. वाई? वी हैव टू चेक वेदर रिटर्न्स आर देयर और नॉट. येस, रिटर्न्स आर देयर, दैट इज परचेज रिटर्न 2000. तो चलो 31,72,000 में से 2000 को लेस करो, दैट इज़ योर रिटर्न. टेक द अमाउंट टू द आउटर कॉलम, दैट इज 31,70,000. Then we have is excise duty, that is 80,000. Excise duty will be on the trading accounts debit side, excise duty 80,000. Then you have is investment, that is 1,20,000. Investment 1,20,000 is your asset. It will move under the head profit and trade balance sheet के asset side में investment 1,20,000. Cleared? Okay. Then you have is sales. Sales is 38,13,000. It is on the credit side and it will move under the head trading account on the credit side by sales 38,13,000. Why in a column? Because you have to less something from that, that is called as sales return. Now to check in the problem if sales returns are there or not. Chalo check in the problem sales return. Yes, sales return is there, that is 3,000. Sales return you will less from sales, that is sales 38,13,000 minus sales return 3,000, outer column में 38,10,000. Then you have is purchase return. Cash in hand is your asset. It will move under the head balance sheet के asset side में cash in hand. Then you have is bank balance, that is 2 lakhs. On the asset side bank balance 2 lakhs. Then you have is sales हो गया. Development fund, that is development fund will move under the head liability side में जनरल रिजर्व में 4 lakhs. डेवलपमेंट फंड रिजर्व में 4,000. अभी उस पर एडजस्टमेंट है. लेट्स सी एंड लेट्स मूव फॉर द एडजस्टमेंट. व्हाट दे हैव सेड फॉर डेवलपमेंट फंड, ऑल्सो ट्रांसफर 4,000 फॉर डेवलपमेंट फंड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट. ओके, तो यहाँ से लेस करेंगे 4,000 फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट for development fund. This is 4,000 less from previous year's profit and it is added in the development fund. Previous year का development fund है 4,000, अभी current year का development fund है 4,000. outer column की total है 8,000. okay, the trial balance is over. Now we'll move further with the adjustment. First adjustment is closing stock as on 31st March 2016 is valued at 2,20,000. as it is in the adjustment, we have to solve. Give two effects. One, closing stock 2,20,000. Second effect is on the asset side, that is current asset closing stock 2,20,000. Then we have is outstanding rent over, that is added in the rent. Then second effect was on the current liability के under head में outstanding rent 2,000. Then you have is commission payable, that is 10,000. Commission payable will be under the head other items, inner column 44,000, commission payable 10,000, outer column 54,000. Commission payable is again your liability, current liabilities and provision current, that is 10,000. Then you have is 4,000 paid was 4,000 salary was paid as an advances. Salary as an advances will always be less from salary. Second effect, as we have paid in advance, it will be under the head other items, salary advance, that is 4,000. Then we have is society declared 5% dividend on paid up capital for the year 2015 and 16. 2015 के लिए सोसाइटी ने 5% के ऊपर डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए बोला है. 5% डिविडेंड ऑन 1,68,000. 1,68,000 पर 1,68,000 का 5% when you take it, the amount is 8,400, which has to be less from here and it will be under the provisions 8,400 and dividend paid, unpaid dividend 8,400 minus 7,900. The difference is 500, which is taken to the outer column. Clear? Okay, next we have in that is transfer 25% profit of year ending to the general reserve.
जनरल रिजर्व के लिए हमें 25% प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना है प्रीवियस ईयर के। ओके, अभी ट्रांसफ़र टू डेवलपमेंट फंड हो गया। 25% प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व को जो है वो पिछले ईयर का प्रॉफिट है। तो पिछले ईयर का प्रॉफिट कौन सा था? ये ओपनिंग प्रॉफिट था। दिस इज़ द प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर, दैट इज़ 80,000। उसका 25% कितना है? 20,000। 20,000 को यहाँ से लेस करो और जनरल रिजर्व में ऐड करो 20,000। आउटर कॉलम विल बी इनर कॉलम 30,000 प्लस 20,000, आउटर कॉलम 50,000। क्लियर टू इट? एक यहाँ से लेस करेंगे, एक यहाँ पर ऐड अप करेंगे। देन वी हैव इज प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 8,000। एज वी हैव ऑडिट फीस का डिफरेंट शेड्यूल in the profit and loss account on the debit side, that audit fees, outstanding audit fees is 8,000, and second effect it is our liability, it will be under the head current liabilities and provisions, audit fees का गया audit fees outstanding, that is 8,000. then we have is interest accrued on investment amounted to rupees 10,000. interest accrued on investment amounted to rupees 10,000, इन्वेस्टमेंट पर 10,000 का इंटरेस्ट अक्यूड हुआ है, ठीक है। दिस इज़ आर इनकम अक्यूड, ठीक है। तो ये एक इफेक्ट जाएगा इनकम साइड के क्रेडिट में, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000, आउटर कॉलम में 10,000। दूसरे कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए नील किया है और सिर्फ ये इंटरेस्ट लिया है और आउटर कॉलम में 10,000 लिखा है। और सेकेंड इफेक्ट ऑफ दिस इंटरेस्ट अक्यूड ऑन इन्वेस्टमेंट, दिस इज़ आर इनकम। तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा? इट विल बी अंडर द हेड अदर आइटम, दैट इज़ अक्यूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ 10,000. cleared? Okay, then we have is director declared 10% dividend for the current year. करंट ईयर के लिए भी डायरेक्टर ने 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, करंट ईयर का डिविडेंड डिक्लेरेशन जो है उसका इफेक्ट हम लोगों को नहीं देना है क्योंकि ये डिक्लेयर्ड किया है। इसका रिजर्व नेक्स्ट ईयर मेंटेन होगा, पिछले साल का ये साल होगा, ये साल का अगले साल में होगा। क्लियर? ओके, सी हियर the recommendation made by the director to declare dividend at 10% for the current year will have to be sanctioned by the general body in the annual general meeting. Hence, effect of the adjustment will not be shown इन द करंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर। तो मैंने आपको वही बताया, ये जो है ये पिछले साल करंट ईयर का बोला है। तो करंट ईयर का जो अकाउंटिंग जो डिविडेंड डिक्लेरेशन होगा, जो पेमेंट होगा उसका, वो पहले सैंक्शन होना पड़ेगा जनरल बॉडी में, देन ओनली वी कैन पे फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अगर उसकी जनरल मीटिंग बैठनी चाहिए, फिर उसके बाद देंगे। बट प्रीवियस ईयर का हमें करंट ईयर में देना है, करंट ईयर का हमें अगले साल में देना है। तो ये जो एडजस्टमेंट है, दिस एडजस्टमेंट 10% डिविडेंड वाली जो है इसको, सॉरी ये वाली, इसका कोई भी इफ़ेक्ट अभी टाइम बीइंग तो नहीं होगा। करंट ईयर के अगर डिविडेंड डिक्लेरेशन बोला है तो उसका इफ़ेक्ट कभी भी मत देना, उसका इफ़ेक्ट सिर्फ हमें अगले साल के प्रॉफिट में से निकालना होगा, नॉट फ्रॉम द करंट ईयर्स प्रॉफिट एट प्रेजेंट। ओके, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑफ 10% ऑन फर्नीचर्स एंड इक्विपमेंट। फर्नीचर्स एंड इक्विपमेंट फिक्स्ड एसेट है 62,000, 10% 6,200, आउटर कॉलम में 55,800। एंड इसका सेकेंड इफेक्ट जो है ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट दैट इज फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, दैट इज 10% 6,200। क्लियर टू इट? ओके, now as we have solved all our adjustment and trading account trial balance, we'll move further for the tallying part of our problem. tally part के लिए basically आपको क्या करना है? same, take the total of credit side, that is income side of your trading account, and total of debit side, that is expenditure side of your trading account. whichever total is higher you have to take the note to the bottom level. कौन सी टोटल हायर है? क्रेडिट साइड की टोटल हायर है। कितनी हायर है? 40,30,000। दोनों साइड लिख लो 40,30,000। और 40,30,000 में से इतनी जो टोटल है, ऐड दिस अप, ये जो टोटल है तीनों की, ये जब आप ऐड अप करोगे तो लेस इट फ्रॉम 40,30,000, द डिफरेंस इज नथिंग बट योर 5,84,000. This 5,84,000 is nothing but your gross profit, to gross profit, which you have to transfer it towards your profit and loss account. When it is profit, why we are shifting it to the debit side? It is a temporary balance. When it goes to the profit and loss account, it comes in the original balance. वहाँ पर प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट था 50 लाख,
5,84,000, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में आएगा 5,84,000. टेक द टोटल 5,84,000, 1,000 and 10,000. टोटल इज़ 5,95,000 एंड लेस दिस टोटल फ्रॉम दैट. ये सब टोटल्स को लेस करो उसमें से. द डिफरेंस विल बी 3,35,800. This is what the total of credit was more than the total of debit. Therefore, the difference is your net profit, and this net profit, that is 3,35,800, is transferred towards your balance sheet under the head profit and loss account के total में जाता है. कितना है वो profit and loss account के total में 1,35,800, और इसको total up करना है and outer column में amount आ जाएगी 3,91,400. Take the total of your asset side plus your liability side. Your balance sheet will be tallying, that is 8,57,000, 8,57,000. See here what they have did here. कि पहले तो हमारे पास पिछले साल का जो प्रॉफिट था उसका ओपनिंग बैलेंस था 8,000. फिर हमने उसमें पिछले साल के ईयर का प्रॉफिट ऐड किया. कितना हुआ 88,000. उसमें से हमने डिविडेंड लेस किया. कितना डिविडेंड पिछले साल का जो था 5% डिविडेंड ऑन पेड अप कैपिटल. पेड अप कैपिटल कितना है 1,68,000. तो उसका 5% कितना आता है 8,400. व्हेन 88,000 में से आपने 8,400 लेस किया तो आपका आंसर आया 79,600. अब इसमें से आपने 25% प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया जनरल रिजर्व को इस अमाउंट का. तो इस अमाउंट को 25% इज़ 20,000. तो इसमें से 20,000 लेस करो. आउटर कॉलम में जो अमाउंट है दैट इज़ 59,600. उसमें से डेवलपमेंट फ़ंड के लिए ट्रांसफ़र करने के लिए बोला था 4,000. तो हमने उसमें से 4,000 डेवलपमेंट फ़ंड के लिए ट्रांसफ़र किया. अमाउंट आया 54,600, और करंट ईयर का प्रॉफिट हमने उसमें ऐड किया 1,35,600. इसीलिए हमारे पास आउटर कॉलम की टोटल थी 3,91,400. अभी इसके सेकंड इफेक्ट्स कहाँ पर दिए. डिविडेंड का सेकंड इफेक्ट दिया यहाँ पर पेड प्रोविजंस में, और ये ट्रायल बैलेंस का डिविडेंड है जो पेड है. आउटर कॉलम में अमाउंट आई 500. ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इसका सेकंड इफेक्ट हमने जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र किया. आउटर कॉलम इनर कॉलम में था 30, करंट ईयर का जो ट्रांसफ़र है 20, आउटर कॉलम में 15. देन वी हैव डेवलपमेंट फंड को जो 4,000 है वो डेवलपमेंट फंड में 4,000 ऐड किया. आउटर कॉलम 8,000. देन वी हैव इज करंट ईयर का प्रॉफिट. करंट ईयर का प्रॉफिट जो है वो इसमें ऐड अप किया एंड टोटल आउटर कॉलम में है. टोटल व्हेन वी टुक इट टू द आउटर कॉलम, आर बैलेंस शीट का टोटल जो है, टेक द टोटल, ये दिस सबको ऐड अप करेंगे तो अमाउंट इज़ 8,57,000. और यहाँ पे भी सबको ऐड अप कर दो अपने एसेट साइड का, तो टोटल होगा 8,57,000. और जो एडजस्टमेंट है ये वाली, डायरेक्टर डिक्लेयर्ड 5% डिविडेंड फॉर द करंट ईयर. तो याद रखो माय डियर स्टूडेंट, जब भी ऐसी एडजस्टमेंट आती है प्रॉब्लम में, दिस एडजस्टमेंट शुड नेवर बी सॉल्व, बिकॉज ये जो डिविडेंड